بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل جوہر علم. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا ایک سیاہ دھبا ہے جس میں راہ حق پر چلنے والوں پر کیے گئے مظالم ناقابل فراموش ہیں. اسی واقعہ سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابیوں کا آغاز ہوا جس نے ملت اسلامیہ کو آج بھی مسائل میں گھیرا ہوا ہے. سانحہ کربلا جو 10 محرم 61 ہجری 680 کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، حق و باطل کے مابین یہ معرکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اموی ظالم حکمران یزید بن امیر معاویہ کے مابین لڑا گیا. آئیے واقعہ کربلا کے اسباب، واقعات اور نتائج کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں. واقعہ کربلا کے اسباب یعنی وجوہات. پہلی وجہ، باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھایا. عبداللہ بن سبا نے جو یہودی تھا بصرہ میں سر اٹھایا، خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر پوشیدہ طور پر سازشیں کرنے لگا. وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے محبت کرتے ہیں. اس آڑ میں وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے لگا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حکومت دوسروں کی پسند کرتے ہیں. اس نے اس زہر کو اتنا پروان چڑھایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حقدار سمجھنے لگی. آخر کار مصر، کوفہ اور بصرہ سے سبائیوں کی ایک جماعت عمرہ کی غرض سے آئی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جو 22 روز تک جاری رہا اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے. اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی جگہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا گیا. 36 ہجری میں مدینہ منورہ میں حالات بہت کشیدگی اختیار کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالحکومت بنایا جائے. اس کی ایک ظاہری وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر دیگر ممالک میں پھیل چکا تھا. چونکہ مدینہ منورہ جنوب میں تھا، بہت سارے لک و دک صحرا عبور کر کے جانا پڑتا تھا، جبکہ کوفہ ایسے مقام پر تھا جہاں سے مشرقی راستہ عراق، ایران، خراسان اور ہندوستان تک جا رہا تھا. وہیں سے شمال کی طرف شام اور ترکی کی طرف اور وہاں سے ہی مغربی افریقہ اور شمالی افریقہ کو کنٹرول کرنا آسان تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سبائیوں کا مرکز بھی کوفہ ہی بنا چونکہ انہوں نے حضرت علی کے ارد گرد رہنا پسند کیا. واقعہ کربلا کی تیسری وجہ قصاص عثمان کا مطالبہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے نے جب زور پکڑا تو اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی جس میں ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم لشکر لے کر آئے. ان سب کا مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر آمادہ بھی ہو گئے تھے، لیکن عین اس وقت کوفے کی مسجد میں 10,000 افراد کا مجمع کھڑا ہو گیا کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں. ایسی صورت میں فریقین میں کشیدگی اور زیادہ بڑھنے لگی. چوتھی وجہ، امیر معاویہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے انکار کرنا تھا. امیر معاویہ خاندان بنو امیہ میں سے تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفدار تھے. امیر معاویہ اپنے آپ کو خلافت کے حقدار سمجھتے تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. پانچویں وجہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت سے دستبرداری. امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے مگر امیر معاویہ ان کے خلاف ایک لشکر جرار لے کر عراق کی طرف بڑھے. امام حسن نے مصلحتاً خون ریزی سے بچنے کے لیے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. اس طرح امیر معاویہ 41 ہجری کو باضابطہ خلیفہ بن گئے.
वाक़या करबला की अहम वजह यजीद की नॉमिनेशन थी। इस्लामी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद शुरायत पर थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अदवार इसकी उम्दा मिसाल हैं। अमीर माविया ने यजीद को खिलाफत के लिए नामजद करके शख्सी हुकूमत की बुनियाद डाली। शख्सी हुकूमत के क़याम का इस्लाम में कोई जवाज़ ही ना था, इसलिए अकाबर सहाबा ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। सातवीं वजह यजीद का ज़ाती किरदार है। यजीद का शख्सी किरदार इन तमाम औसाफ से आरी था जो कि एक खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। इसके ज़ाती मशागिल ने इसे फासिक और फाजिर बना दिया था, लिहाजा इसको बतौर हुक्मरान तस्लीम करना नामुमकिन था। आठवीं वजह बैत पर मजबूर करना था। यजीद ने तख्त नशीन होने के बाद वालिय मदीना वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा। इसकी रूह से हर मुमकिन तरीके से अहले मदीना से बैत हासिल करनी थी। जब इमाम हुसैन को मजबूर किया गया तो आप मदीना से मक्का आ गए। अहले कूफा की दावत। अहले कूफा ने बहुत से खतूत इमाम हुसैन को लिखे कि वो कूफा आएं, क्योंकि अहले कूफा उनकी बैत करने को तैयार हैं। लेकिन बाद में इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील करते हुए अपने वादे से फिर गए। सानिहा करबला के वाक़यात। हज़रत इमाम हुसैन ने कूफा के हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। जब मुस्लिम कूफा पहुंचे तो कूफी इनके हाथ पर बैत करने के लिए टूट पड़े। इस वजह से मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दे दी। उस वक्त नुमान बिन बशीर कूफा के वाली थे। यजीद को जब मुस्लिम बिन अकील के बारे में इल्म हुआ तो उसने नुमान को माजूल कर दिया, इब्ने ज़ियाद को कूफा का वाली मुकर्रर किया और साथ ही ये हुक्म दिया कि मुस्लिम को निकाल दो या कत्ल कर दो। मुस्लिम बिन अकील की शहादत। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। कत्ल होने से कबल मुस्लिम ने मोहम्मद बिन अशद से कहा, मेरे कत्ल की इतला इमाम हुसैन तक पहुंचा देना और उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज भरोसा ना करें, जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं से वापस चले जाएं। इमाम हुसैन की कूफा रवानगी। इमाम हुसैन के चाहने वालों ने इन्हें कूफा जाने से रोका। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि ये जो लोग आपको बुला रहे हैं वो दरअसल जंग के लिए बुला रहे हैं, लेकिन इमाम आली मकाम सफ़र का कसद कर चुके थे। इमाम हुसैन खैर ख्वाहों के मशवरे के खिलाफ ज़िलहज 60 हिजरी को अपने अहलो अयाल के साथ कूफा रवाना हो गए। आपका ये काफिला 72 अफराद पर मुश्तमिल था। मौरखीन के नज़दीक इनमें से 32 सवार और 40 प्यादे थे। इनमें बच्चे, जवान और ख़वातीन सब शामिल थे। जब आप मकाम सलबिया पर पहुंचे तो मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। आपने वापसी का कसद किया, लेकिन बनी अकील की तलवारें न्याम से बाहर आ गईं और बनु हाशिम के तेवर बदल गए और कहने लगे, हम मुस्लिम बिन अकील का कसास लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। लिहाजा मदीना से आने वाले जानसारों के साथ आप आगे बढ़े। हुर बिन यजीद तमीमी की आमद। इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन की रवानगी की इतला मिल चुकी थी। चुनाचे उसने यजीद के हुक्म के मुताबिक मदीना से इराक आने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी और हुर बिन यजीद तमीमी को 1000 सवार देकर रवाना किया। मुकाम ज़ी हशम पर जब इमाम हुसैन पहुंचे तो हुर ने भी उनके मुकाबिल पड़ाव डाल दिया। जिगर गोशे बतूल ने हुर से मक्का वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर उसने मुज़ाहमत की और इब्ने ज़ियाद के सामने आपकी इस तजवीज़ को पेश किया। मकामी बैज़ा पर इमाम हुसैन ने फसीह व बलीग खुतबा दिया। इसमें सफ़र कूफा के मकासद बयान किए और हक के मुकाबले में बातिल के खिलाफ डट जाने पर जोर दिया। हुर को इब्ने ज़ियाद का ख़त नैनवा के मुकाम पर मिला, जिसमें लिखा था कि हुसैन और इनके साथियों को फौरन रोक लो, उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर करो जहां कोई ओट और पानी ना हो। मैदान करबला में आमद। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने करबला में काफिला उतारा। अमर बिन साद को इब्ने ज़ियाद ने 3 अहकामात सादर किए। 1 बैत लेने का, दूसरा पानी की बंदिश का,
तीसरा, इताअत ना करने की सूरत में कत्ल करने का हुक्म दिया। आखिरकार 10 मुहर्रम 61 हिजरी लड़ाई शुरू हुई तो मुट्ठी भर आदमियों ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि तारीख ता क़यामत उनके कारनामे फरामोश ना कर सकेगी। आपके रुफ़का ने दुश्मनों की यलगार का पूरी कुव्वत ईमानी से डट कर मुकाबला किया और यूं आपके रुफ़का बारी बारी जामे शहादत नोश कर गए। आखिरकार इमाम आली मकाम नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल तन तनहा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने सर देकर इस्लाम की आबरू बचाई। आपकी मुखालफत यजीद से ना थी बल्कि उस निज़ाम हुकूमत से थी जो फिस्को फजूर और ख़ानदानी असबियत की बुनियाद पर कायम किया जा रहा था। इमाम हुसैन ने जमहूरी निज़ाम की हिमायत में जाबिर बादशाह के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया और इस मसला पर सर धड़ की बाजी लगाकर दुनिया को ये सबक दे गए कि जो निज़ाम इस्लामी उसूल के खिलाफ हो वो मोमिन के लिए नाकाबिले कबूल है। मार्का करबला यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं था बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान था। यानी ये शख्सी लड़ाई नहीं थी बल्कि नजरियात का तसादुम था जिसमें यजीदियत हार गई और हुसैनियत जिंदाबाद हो गई। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला के नताइज। इस हादसा के बाद बनु हाशिम सर उठाने के काबिल ना रहे। इस जंग में बनु हाशिम के 20 अफराद शहीद हुए। वाक़या करबला के बाद अहले हिजाज यजीद की तवज्जो का मरकज़ बन गए। चूंकि मदीना वालों ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए यजीद ने इनकी सरकोबी का पूरा पूरा इरादा कर लिया। मदीना की मुहिम से फारिग होकर यजीदी लश्कर अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुकाबले के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ। इस लश्कर की वजह से खाना काबा की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान यजीद की वफात की खबर पहुंची और अब्दुल्ला बिन जुबैर की मक्का पर खिलाफत कायम हो गई। 2 खिलाफतें वजूद में आईं। शाम में यजीद और मदीना में अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा बने। इस वाक़या के रद्द अमल में कई सियासी तहरीकें वजूद में आईं। ये सानहा उमवी खिलाफत के जवाल का बाइस बना। लोगों की वफादारियां ग्रोहों में बट गईं। अब्बासियों ने इस वाक़या को उमवियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी तहरीक जोर पकड़ गई और उमवी इक़्तिदार खाक में मिल गया। अलगर्ज वाक़या करबला तौहीद पर यकीन का एक वाज़े सबूत है। रब्बे जुल जलाल के अलावा किसी से ना डरने और बातिल के सामने डट जाने का नाम। गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल।